آپ کو بتائیں گے سویڈن کا اسلام آباد سے ویزا سروس بحال کرنے کا اعلان۔ 2 سال پہلے بند کی گئی ایمبیسی کو اب کھول دیا گیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ 113 سے 97 نمبر پر آ چکی ہے۔ السلام علیکم۔ یورپ کا ایسا ملک جہاں خوشحال اور پرسکون زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہر کوئی امریکہ، انگلینڈ جانے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن سویڈن ان دونوں ممالک کی نسبت بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں سویڈن کی۔ کیوں اس ملک میں پورے شہر کو منتقل کیا جا رہا ہے؟ اس ملک میں پاکستانی کتنا پیسہ کما رہے ہیں اور رہنے کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ پاکستانی ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اسلام کے کون سے فلسفے نے اس ملک کے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے؟ سویڈن دنیا کا ایسا ملک ہے جس کی خوبصورتی پوری دنیا میں فیمس ہے، لیکن اس ملک کی بات صرف خوبصورتی تک نہیں رکتی۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ چلے اب نکلتے ہیں سویڈن کے ایک شاندار سفر پر۔ سویڈن کا آفیشل نام کنگڈم آف سویڈن ہے۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کی کل آبادی 1 کروڑ 6 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 91 نمبر پر آتا ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے اس ملک کی آبادی بہت کم ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,50,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے 55ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس ملک میں آپ کو رش بہت کم دیکھنے کو ملے گا۔ سویڈن کی 2025 میں جی ڈی پی $638 بلین ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $57,000 ہے، جو پاکستانی 1 کروڑ 60 لاکھ کے برابر ہے۔ سویڈن میں استعمال ہونے والی کرنسی سویڈن کرونا ہے۔ 1 کرونا کے بدلے 30 پاکستانی روپے ملتے ہیں، جبکہ ایک سویڈن کرونا انڈین 9 روپے کے برابر ہے۔ سویڈن میں بولی جانے والی زبان سویڈش ہے، اس لیے جو بھی سویڈن کام کے غرض سے جانا چاہتا ہے وہ زبان ضرور سیکھ کر جائیں۔ سویڈش زبان کے بہت سے لفظ انگلش سے ملتے جلتے ہیں، جیسے انگلش کا لفظ ہاؤس، جبکہ سویڈش میں ہوس، واٹر کو واٹن، مدر کو مودر بولا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ کس ملک میں رہتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پہلے نمبر پر فن لینڈ، دوسرے نمبر پر ڈینمارک، تیسرے نمبر پر آئس لینڈ، جبکہ چوتھے نمبر پر سویڈن آتا ہے، جو اپنے ملک میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی پریشانیوں میں یہ کیسے اتنے خوش ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، سویڈن میں اسلام کا اہم فلسفہ اپنایا ہے، جس کا نام ہے لاگوم۔ یہ ایک سویڈش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میانہ روی، اور یہ فلسفہ پورے سویڈن کے لوگوں نے اپنایا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کی ہر چیز میں یہ فلسفہ شامل ہے۔ یہ نہ زیادہ کھاتے ہیں اور نہ کم کھاتے ہیں، نہ زیادہ مہنگا لباس پہنتے ہیں اور نہ بالکل سستا لباس، بلکہ آرام دہ لباس کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہ ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور نہ ہی کام کرنے سے بھاگتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزوں کا لالچ زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سادہ زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے، جس کی وجہ سے ان میں غریب اور امیر کی عزت ایک برابر کی جاتی ہے۔ یہ کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھتے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے سکھا دی تھیں، جس کو مسلمانوں نے اپنایا ہی نہیں، اور آج سب کچھ اس کے الٹ چل رہا ہے، جس کے بعد ہم خوشحال نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ اسلام کو مکمل طور پر اپنانے میں ہی صرف خوشحالی ہے۔ سویڈن کا دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے، جو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومت میں آتا ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اگر آپ یہاں جائیں گے تو آپ اس شہر کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس شہر کو وینس آف نارتھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر خوبصورت پانیوں، تاریخی عمارتوں اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ شہر 14 جزائر پر مشتمل ہے، جس کو 50 پل سے آپس میں جوڑا گیا ہے۔ سویڈن میں 55% مسیحی، 35% ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، 10% مسلم اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ سویڈن میں پاکستانیوں کی تعداد 30,000 کے قریب ہے، جو یہاں خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر مالمو سٹی، گوتھنبرگ اور اسٹاک ہوم سٹی میں رہتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی 1980 کی دہائی میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں لیبر کی بہت کمی واقع ہو چکی تھی۔ آج بہت سے پاکستانی ٹیکسی بھی چلاتے ہیں، جس میں 12 گھنٹے کام کیا جاتا ہے، جو 3,000 یورو سے 4,000 یورو تک آسانی سے کما لیتے ہیں، جبکہ اس ملک میں انڈین کی تعداد 60,000 کے قریب ہے۔ دوستو، سویڈن میں ہیلتھ اور تعلیم مکمل طور پر مفت ہے، اور یہ کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ سویڈن کے لوگوں کی خوشحال رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہاں کے لوگ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں خود پر لگا لیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں آ کر فوڈ ڈیلیوری کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو فڈورا میں آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے۔ یہ سب آسانی سے ملنے والی نوکری ہے۔
लेकिन अगर आप कोई अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास तालीम, एक्सपीरियंस और स्किल जरूर होना चाहिए। टैक्सी लाइसेंस के लिए आपको 2 पेपर पास करने होते हैं और ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाता है और स्वीडिश जुबान आपको जरूर आनी चाहिए। छोटी फैमिली के साथ रहने का खर्चा 2000 यूरो तक आ जाता है। इस मुल्क में फैमिली को साथ लाना आसान होता है। स्टूडेंट वीजा को भी वर्क परमिट में तब्दील किया जा सकता है। स्वीडन के लोग बहुत नरम मिजाज के होते हैं, हर किसी की मदद करना पसंद करते हैं। स्वीडन के लोग एक जमाने में बाहर से आने वाले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते थे, लेकिन अब ये रिवाज बहुत कम हो चुका है। इसकी वजह यह है कि बाहर से आने वाले लोगों ने ड्रग और गैंग्स बनाना शुरू कर दिए, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों को पसंद करना कम कर दिया। अगर आप 5 साल भी यहाँ रहेंगे तो आप कभी किसी को लड़ता नहीं देखेंगे। दोस्तों, इस मुल्क में तमाम ट्रांजैक्शन कार्ड से की जाती हैं, कैश पेमेंट ना होने के बराबर है। स्वीडन में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। सितंबर से मई तक बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। अमेरिका और इंग्लैंड की निस्बत महंगाई इस मुल्क में कम है। स्वीडन के लोग गर्मियों में एक त्योहार मनाते हैं जिसे मिड समर फ्रॉक डांस कहा जाता है। ये मेंढक की तरह डांस करते हुए आपको नजर आएंगे। आज से 100 साल पहले तक ये एक गरीब मुल्क था, लेकिन आज मेहनत से ये अमीर और खुशहाल हो चुके हैं। स्वीडन आज फाइटर जेट भी बना रहा है। आपने एरिक्सन का नाम तो सुना होगा। आज से 25 साल पहले मोबाइल फोन भी इसी कंपनी के इस्तेमाल हुआ करते थे। इसके अलावा आइकिया का फर्नीचर पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। स्वीडन में रेस्टोरेंट में काम करने वालों की कम से कम सैलरी 1500 यूरो है, कंस्ट्रक्शन की 1600 यूरो, जबकि आईटी की 2200 यूरो के करीब है। दोस्तों, पाकिस्तान में 2023 में स्वीडन की एम्बेसी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इसकी वजह सिक्योरिटी हालात बताए गए थे, क्योंकि स्वीडन में 2023 में कुछ बदबख्त लोगों ने कुरान पाक की बेहुरमती की, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जिसके बाद स्वीडन ने सफारती अमले को अपने मुल्क वापस बुला लिया। स्वीडन के वीज़ा के लिए आपको VFS ग्लोबल में अप्लाई करना होता है। इसका प्रोसेस भी शेंजन वीज़े की तरह है, लेकिन इंग्लैंड की निस्बत वीज़ा आसानी से लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना इसका विजिट करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले स्टॉकहोम जाते हैं। यह है स्टॉकहोम का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो इस मुल्क के तरक्की याफ्ता होने की अक्कासी करता है। इस शहर का एयरपोर्ट 40 किलोमीटर दूर बनाया गया है। शहर में आप 30 मिनट में आसानी से पहुंच जाते हैं। स्टॉकहोम साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है। इस शहर को म्यूजियम का शहर भी कहा जाता है। 100 से ज्यादा म्यूजियम इस शहर में मौजूद हैं। इस शहर के मेट्रो बस स्टेशन देखने से ताल्लुक रखते हैं। इनके स्टेशन को दुनिया के खूबसूरत स्टेशन भी कहा जाता है। एक से बढ़कर एक आर्ट वर्क आपको इनके स्टेशन में नजर आएगा। मेट्रो ट्रेन के जरिए आप शहर के दूसरे जजीरों पर भी जा सकते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात को क्लब, रेस्टोरेंट और बार सब कुछ खुला रहता है। इस शहर की गलियों में चलते हुए आपका वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। हर तरफ आपको पुरसुकून माहौल मिलेगा। सर्दियों में इस शहर में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। स्टॉकहोम का सिटी सेंटर बहुत खूबसूरत है। रात का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। आज से कुछ दिन पहले इस स्क्वायर में मलाला यूसुफजई से यकजहती के लिए एक लाइन भी लिखी गई थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी आपको नजर आएगी। बहुत से लोग फिनलैंड से स्टॉकहोम क्रूज के जरिए आते हैं। ये 15 घंटे का सफर जिंदगी का शानदार सफर होता है। बहुत से लग्जरी क्रूज इस सफर के लिए चलाए जाते हैं। स्वीडन का सबसे फेमस म्यूजियम वासा म्यूजियम है। 1628 में ये शिप पोलैंड से जंग के दौरान डूब गई थी, जिसे दोबारा पानी से निकाला गया है। हैरानी की बात यह है कि जो आप इस पर आर्ट वर्क देख रहे हैं, ये भी 400 साल पुराना है। इन पर लगे मुजस्समों को मुख्तलिफ रंगों से तैयार किया गया था, जो अब खत्म हो चुके हैं। ये अपने दौर की एक नायाब और हैरत अंगेज शिप थी, जो अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस थी। इसे स्वीडन के किंग ने 1626 में तैयार करवाया था। ये उस दौर की शिप का मॉडल बनाया गया है। 400 साल पहले ये शिप देखने में ऐसी लगती थी। ये आज भी दुनिया की सबसे पुरानी शिप है। इस शिप ने सिर्फ 20 मिनट सफर किया था। स्वीडन के लोगों का पसंदीदा खाना मीटबॉल है, जिसे हम कोफ्ते बोलते हैं। यहाँ के लोग ये बहुत शौक से खाते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं स्वीडन के दूसरे फेमस सिटी, जिसका नाम माल्मो है। ये स्टॉकहोम से 600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ट्रेन से इस शहर तक जाते हुए आप कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। माल्मो शहर समुद्र के किनारे वाक़या है, जो डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन के साथ लगता है। दुनिया की सबसे पहली मुड़ी हुई बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे टर्निंग टावर कहा जाता है। इसे रीढ़ की हड्डी के डिजाइन की तरह बनाया गया है। माल्मो में आपको सबसे ज्यादा अरब लोग देखने को मिलेंगे। ये एक हैरत अंगेज शहर है।
ट्रैम ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। माल्मो शहर से डेनमार्क के दरमियान एक पुल बनाया गया है जो फने तामीर का एक हैरत अंगेज कारनामा है। इसे ओल्डलैंड ब्रिज कहा जाता है। इस पुल से गाड़ियां और ट्रेन एक साथ अचानक से पानी के अंदर चली जाती हैं और ऊपर से बड़े शिप गुजरते हैं, जबकि नीचे रोड मौजूद होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वीडन में जब बच्चे स्कूल को मुकम्मल करते हैं तो पूरे शहर में कचरे के ट्रक पर चक्कर लगाते हैं और बच्चों के वालिदैन सड़कों पर इनका इस्तकबाल करते हैं। स्वीडन का हर शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। सफाई पूरे मुल्क में आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि इस मुल्क में कचरे से बिजली भी तैयार की जाती है। हफ्ते के रोज बहुत से लोग गाड़ियों में सिर्फ कचरा फेंकने के लिए आते हैं ताकि रिसाइकल किया जा सके, जबकि इस चीज के गवर्नमेंट इन्हें कोई पैसे नहीं देती। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपने मुल्क को साफ रखना पसंद करते हैं। स्वीडन में आकर आप नॉर्दर्न लाइट्स भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको किरोना टाउन में जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल नॉर्थ में वाक़या है। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। किरोना टाउन बहुत तारीखी शहर है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। हर घर और बिल्डिंग को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा है। इसकी वजह यहाँ मौजूद एक पहाड़ है। ये कोई आम पहाड़ नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर की ज़ेरे ज़मीन माइन है और इस माइनिंग की वजह से ये शहर नीचे से खोखला हो चुका है, जिसकी वजह से इस शहर को मुंतकिल किया जा रहा है। किरोना टाउन की सबसे फेमस जगह आइस होटल है। पूरा होटल ही आइस का बनाया गया है। हर चीज इसमें बर्फ की है। दोस्तों, जो लोग भी स्वीडन आना चाहते हैं इनके पास तालीम या हुनर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जुबान आना भी जरूरी है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़्क़ के मौके अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।